This one is the first video on chemical kinetics, and I will be taking up a rate of reactions in this video. So in this video, as you know, all of my videos contain numerical as of now, but ये जो part है chemical kinetics का, they are not exactly numerical. They are question based on rate of reactions, and they involve small calculations, very basic ones, but they will make you concept clear related to the rate of reactions. So जो ये वीडियो है इसमें हम उसी पे क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड. So before start taking up the questions on rate of reactions, let us have a brief revision of the concepts related to the same जो आपने थ्योरी में पढ़े होंगे, but I'll be taking up obviously because I have to use them in my questions. Now rate of reaction, when it come to rate of reactions, rate of a reaction, you might have studied, you must have studied about instantaneous rate and average rate of a reaction. So for example, if uh, there is a reactant A and it changes to product, okay, then if you talk about instantaneous rate of reaction, then rate of reaction is given by instantaneous, a small change in the concentration of A upon with time, right? And यहाँ पे हम लगाते हैं minus sign which expresses that concentration of A is changing with time. So this one is the instantaneous rate. Instantaneous rate of reaction, और ज्यादातर हम यही यूज करते हैं, instantaneous rate of a reaction, right? Small change in the concentration of A with small change in time, little change in time. And if we talk about average rate of reaction, then average rate is given by minus delta A upon delta T. This delta represents large change in the concentration. मतलब एक पर्टिकुलर रेंज में कि अब मान लो टाइम T1 और पे ये कॉन्सेंट्रेशन थी, देन टाइम T2 पे ये कॉन्सेंट्रेशन थी, देन T2 minus T1 will delta T, and delta A will be what is the concentration of the reactant A at time T1 and what will the reaction what is the concentration of reactant A at time T2. तो A2 minus A1 हो जाएगी आपकी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन. सो ये हम डिस्कस करेंगे जब हम इसके क्वेश्चंस लेंगे, but in general just to give you an idea of कि dA by dt क्या होता है and delta A by delta T क्या होता है, that is why I'm writing here this thing, right? Instantaneous rate of reaction and average rate of reaction. अब बात करते हैं इन जनरल, हम जब भी रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर रिएक्शन लेते हैं, राइट? सो यहाँ पे मैं एक रिएक्शन ले रही हूँ. सपोज देयर इज अ रिएक्शन इन विच A moles of A reacts with B moles of B to give X moles of X and Y moles of Y. So rate of reaction in terms of all the reactants or all the products can be written. एंड जो मैंने पिछले उसमें लिखा था, अभी जो इससे पहले लिखा था मैंने, दैट वाज द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट. मैंने प्रोडक्ट के टर्म्स में नहीं लिखा था. अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि हाउ डू वी राइट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड ऑल द प्रोडक्ट्स. उस केस में एक ही रिएक्टेंट था, यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स हैं, दो प्रोडक्ट्स हैं. सो आई विल बी राइटिंग अप रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ऑल ऑफ देम. सो रेट ऑफ रिएक्शन in this case will be equal to minus 1 by A, small change in concentration of A with small change in time. So basically यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेट ऑफ, मैंने उस जो पहले लिखा था A to product, इसमें कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे A है. So when we write rate of reaction in terms of any of the reactant, we have to reciprocal the stoichiometric coefficient. तो उसका रेसिप्रोकल यानी कि 1 by A हो जाएगा, एंड माइनस साइन ऑब्वियसली इंडिकेट्स डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A विद टाइम. नाउ रेट ऑफ रिएक्शन ये हो गया, एंड इन टर्म्स ऑफ B इट विल बी ऑब्वियसली minus 1 by B dB by dt. And if I write in terms of products, it will be plus 1 by X, change in concentration of X with time, capital X. And in terms of Y,
it will be change in concentration of Y with time, small change in concentration. So this is how we write rate of reaction in terms of concentration of reactants and products. अभी एक और टर्म यूज करते हैं हम, रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन. ना रेट ऑफ डिसअपियरेंस, विद टाइम क्या डिसअपियर होगा? विद टाइम रिएक्टेंट डिसअपियर होगा. सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट्स, यहाँ पे है ए. सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए के लिए हम सिंपली लिखते हैं माइनस स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम. इसमें हम स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखते हैं. In the same way, if you need to write rate of disappearance of B, that will be minus dB upon dt. And if you want to write rate of formation or production of the products, rate of formation या production of any of the products, rate of formation of X, this will be equal to plus dx by dt. In the same way, rate of formation of Y will be equal to plus dy by dt. इनके साथ ध्यान रहे हम स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखते हैं when we write rate of disappearance, because वो सिर्फ इतना बता रहा है कि वो भी टाइम डिक्रीज हो रहा है in case of reactant and disappear हो रहा है. and formation में हम इंडिकेट करते हैं change of concentration of the products with time. So this was the basic information regarding the rate of reaction. अब हम क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड. So the first question has that express the relationship between the rate of production of water and the rate of disappearance of oxygen in the following reaction. 2H2 plus O2 gives you 2H2. अब आपको प्रोडक्शन ऑफ वाटर एंड डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट व्हाट इज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वाटर. अगर आपको, जैसे मैंने पहले बताया पिछली स्लाइड में, अगर आपको रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वाटर लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर विद स्मॉल चेंज इन टाइम, राइट, विद टाइम, ये लिखेंगे आप. ठीक है. एंड अगर आपको लिखना हो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आप क्या लिखेंगे? disappearance of oxygen, so you will write minus DO2 upon dt, राइट, आप यही लिखेंगे. ठीक है. अब आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ बोथ. रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बोथ, सबके हम टर्म्स में लिख सकते हैं, हम हाइड्रोजन के टर्म में भी लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं. चलिए, इट विल बी माइनस 1/2 DH2 अपॉन dt. इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन माइनस 1/2, नो नॉट 1/2, सॉरी, यहाँ तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ही नहीं है. सो माइनस DO2 by dt, and in terms of water it will be plus 1/2 DH2O by dt. हमें रिलेशनशिप चाहिए ऑक्सीजन एंड इनके बीच में. तो यहां से हमें पता है ये एक्सप्रेशन आ गया that this is equal to this. So minus DO2 by dt is equal to plus 1/2 DH2O by dt. तो ये रिलेशनशिप हमने एस्टेब्लिश कर लिया बिटवीन rate of disappearance of oxygen and rate of appearance of formation of water. This is the relationship what we were being asked. तो ये हो गया हमारा रिलेशनशिप बिटवीन बोथ. ठीक है. तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फॉर द रिएक्शन 4 ammonia plus 5 O2 gives you 4NO plus 6H2O. If the rate expression in terms of disappearance of ammonia is minus delta change in concentration of ammonia by delta T, sorry, minus delta concentration of ammonia by delta T, write the rate expression in terms of concentration of oxygen and water. तो आपको बेसिकली इसको यूज करके, सॉरी, आपको बेसिकली इसको यूज करके इसके और इसके टर्म पे रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखना है. तो ना फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट, हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है रेट ऑफ
appearance of ammonia, और ये लिख सकते हैं कि रेट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया हमें क्या गिवन है, रेट एक्सप्रेशन हम सिंपली लिख लेते हैं that we have been given rate is equal to minus delta ammonia by delta T। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि इन जनरल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। रेट ऑफ reaction, this is rate of basically disappearance of ammonia, rate of reaction क्या होगा, it will be minus 1/4 delta NH3 by delta T. In terms of oxygen it will be minus 1/5 delta O2 by delta T. In terms of NO it will be plus 1/4 delta NO by delta T, and in terms of water it will be plus 1/6 delta H2O delta T. बेसिकली आपको इसमें अमोनिया वाले एक्सप्रेशन में और ऑक्सीजन एंड वाटर वाले एक्सप्रेशन में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। नाउ वी नो दैट दिस इज इक्वल टू ऑल ऑफ दीज, सारे बराबर सेम ही है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन में बाय वेदर वी राइट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। तो हमें ऑक्सीजन एंड अमोनिया में एस्टेब्लिश करना है, तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है दैट minus 1/4 delta ammonia by delta T is equal to minus 1/5 delta O2 by delta T। तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर हम इसको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया लिख लें, ये इन्होंने बोला ना मैं रेट एक्सप्रेशन इज लाइक दिस, ये, सो दिस विल बी इक्वल टू minus 4/5 delta O2 by delta T। तो ये आ गया आपका जो उन्होंने बोला था, ये एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है, इन द सेम वे नहीं, अमोनिया एंड ऑक्सीजन का आया, अब हम निकाल रहे हैं अमोनिया एंड वाटर का, तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वेट करिए। सो दिस विल बी in terms of water निकालने के लिए minus 1/4 delta ammonia by delta T is equal to plus 1/6 delta H2O by delta T। तो यहाँ से this is what, this is the rate expression in terms of ammonia, तो इसको 4 को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 4/6 delta H2O by delta T। So this is rate expression in terms of water। ठीक है, तो यही हमसे दो चीजें पूछी थी and that we have calculated। चलिए, a reaction 2x gives you y plus 3z, जैसे कि अमोनिया की decomposition, अमोनिया changes to, not exactly decomposition, अमोनिया changes to N2 plus 3H2। एक्चुअली आपको, अगर आपको पता है अमोनिया की जो फॉर्मेशन होती है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ठीक है, तो जब N2 plus 3H2 रिएक्टर के अमोनिया बनाते हैं, द सेम टाइम अमोनिया डीकम्पोजेस टू फॉर्म नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि एक रिएक्शन फॉर एग्जांपल है जिसमें 2x gives you y plus 3z, मतलब एक रिएक्टेंट है x that gives you two products y and z is being carried out in a closed vessel. The rate of disappearance of x minus delta x by delta t is found to be 0.066 moles per liter per second. Calculate delta y by delta t and delta z by delta t। अब जो हमें गिवन है वही लिख लेते हैं। पहले हमें गिवन है रेट ऑफ disappearance of x which is equal to minus delta x by delta t, जिसकी वैल्यू गिवन है 0.066 मोल्स
पर लीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है डेल्टा बाय डेल्टा टी एंड डेल्टा जेड बाय डेल्टा टी. Now what is the rate of reaction for this particular equation? Rate of reaction is equal to minus 1 by 2 delta x by delta t in terms of x, and in terms of y and z it will be delta y by delta t, and z के लिए हो जाएगा 1/3 डेल्टा z बाय डेल्टा t. राइट, अब आपको ये वैल्यू गिवन है माइनस डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, तो आपको डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी निकालना है, तो इन दोनों को इक्वेट करके यूज कर लेते हैं. -1/2 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी. यहाँ से हमें पता है 1/2 इंटू माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी. इसकी वैल्यू है 0.066 मोल. सो 1/2 इंटू 0.066, दिस इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी. तो यहाँ से ये आ गया 0.33. सो देयरफॉर डेल्टा वाई by delta t is equal to 0.033 मोल पर लीटर पर सेकेंड. अब हमें चाहिए z वाला एक्सप्रेशन, तो वहां से ये दोनों को इक्वेट करते हैं. -1/2 ऑल्सो -1/2 डेल्टा x बाय डेल्टा t इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा z बाय डेल्टा t. हमें निकालना है डेल्टा z बाय डेल्टा 3. यहाँ से अगेन हमें पता है माइनस डेल्टा x बाय डेल्टा t क्या है, इट इज 0.066. तो दिस इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा z बाय डेल्टा t. तो यहाँ से आ गया आपका डेल्टा z बाय डेल्टा t, ये तो कैंसल आउट हो गया 0.033, इससे डिवाइड हो गया ये, और 3 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 0.099 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. तो ये आ गया आपका डेल्टा z बाय डेल्टा t. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A chemical reaction 2A gives you 4B plus C in gas phase occurs in a closed vessel. The concentration of B is found to be increased by 5 into 10 raised to power minus 3 moles per liter in 10 seconds. Calculate the rate of appearance of B and the rate of disappearance of A. Now basically हमें दिया क्या, पहले वो देखो. हमें ये दिया है कि जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है B की, ये इंक्रीज हो रही है बाय 5 into 10 raised to power minus 3 moles per liter in 10 seconds. तो यानी कि हमें ये गिवन है, यानी कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B विद टाइम which is equal to 5 into 10 raised to power minus 3 upon 10. So this comes equal to 5 into 10 raised to power minus 4 moles per liter per second. तो हमने ये निकाल लिया. हमें क्या निकालना है, rate of appearance of B. Now rate of appearance of B obviously क्या होगा, it will be dB by dt, और ये हमने निकाल लिया है which is equal to 5 into 10 raised to power minus 4 मोल per liter per second. सेकेंड हमें निकालना है rate of disappearance of A. Now rate of disappearance of A is what? It is equal to minus dA by dt. हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास dV by dt की वैल्यू है, हम dA by dt और dV by dt में रिलेशनशिप निकाल लेंगे. वो कैसे, we know that rate of reaction is what? Rate of reaction in this case is what? It is equal to minus 1/2 dA by dt
इज इक्वल टू नेक्स्ट क्या है हमारे पास 1/4 dB/dt। इन टर्म्स ऑफ हम c भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें c की जरूरत नहीं है, पर मैं लिख देती हूँ dc/dt। सो यहाँ से इन दोनों को ले लीजिए, -1/2 dA/dt इज इक्वल टू 1/4 dB/dt। नाउ dB/dt हमने क्या निकाला है, 5 into 10⁻⁻⁻4 moles per liter per second। बस यहाँ पे इसको यूज कर लीजिए, dA/dt दिस इज इक्वल टू 1/4 into 5 into 10⁻⁻4। यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ से आ गया -dA/dt इज इक्वल टू 2/4 into 5 into 10⁻⁻4। this is equal to 2.5 into 10⁻⁻4 moles per liter per second। so this is what, this is rate of disappearance of A। यही हमें निकालने को बोला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The decomposition of N2O4 in CCl4 solution at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of nitrogen pentoxide in the solution. Initially, the concentration of N2O5 is 2.33 molar, and after 184 minutes, it is reduced to 2.08 molar. The reaction takes place according to the equation. This 2N2O5 gives you 4NO2 plus O2. Calculate the average rate of reaction in terms of hours, minutes, and seconds. What is the rate of production of NO2 during this period? Now the question is very simple. Obviously आपको इसमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ही निकालना है, बिकॉज आपको एक इनिशियली बता रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन जो है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की, देखो इतना रिएक्शन जितना इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने स्टेटमेंट दिया, इतनी ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की जो है डिकम्पोजिशन कैरी आउट की जाती है, उसके लिए कोई सोल्यूशन हमने CCl4 का लिया है, उसके अंदर इसकी डिकम्पोजिशन कैरी आउट की जाती है। उसके अपने रीजंस हैं, आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट व्हाई CCl4 एंड स्टफ, ठीक है, वो थ्योरी पार्ट से रिलेटेड है, अभी मैं वो नहीं करा रही हूँ। सो बस ये है कि N2O5 इज बीइंग डीकम्पोज्ड, एंड N2O5 जब डिकम्पोज होती है, डिकम्पोजेज अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर रिएक्शन जो आपको गिवन है। सेकेंड थिंग, ये बोल रहे हैं कि इनिशियली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इज 2.33 मोल्स, एंड 184 मिनट्स के बाद वो 2.08 मोल्स हो जाती है। ऑब्वियसली वो डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज N2O5 इज अ रिएक्टेंट। अब आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, मतलब डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर्स निकालना है। तो मतलब आपको बेसिकली पहले रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। फिर आपको ये पता है कि इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन 2.33 थी, फिर 2.08 हो गई, तो वो डिफरेंस बाय डिफरेंस इन द टाइम 184 माइनस 0, ठीक है, और वो आप निकालेंगे। आपको निकालना है आवर्स में, मिनट्स में, सेकंड्स में। आपको मिनट्स में दिए, आप उसको आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं 60 से डिवाइड करके, एंड सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं 60 से मल्टीप्लाई करके। सो दिस इज एज सिंपल एज दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ N2O5, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन ही गिवन है। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स of N2O5, and now it will be average rate of reaction, average. This is equal to -1/2 delta N2O5 upon delta T। now delta क्या है यहाँ पे, change in concentration of N2O5 at time, so 2.08 minus 2.33 upon 184 माइनस इनिशियली 0 ले लेते हैं तो 184 ही होगा ये, ठीक है। तो ये आ गया आपका
फाइनल 2.08 है, माइनस इनिशियल है ना, तो ये आ गया -1/2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके 1.36 इंटू 10⁻⁻, सॉरी just a second, let me write it again. 1.36 into 10⁻³ moles पर लीटर पर मिनट। ये होगा मिनट में। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, तो जो नीचे 184 मिनट था वहां पे 60 से मल्टीप्लाई करना है। आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 60 से, बिकॉज आपका जो टाइम है वो नीचे है। सो इन सेकेंड्स दिस विल बी इक्वल टू माइनस, या तो यहीं कर लीजिए या ऊपर कर लीजिएगा, 2.08, सीधा इसी को कर लेते हैं 60 से डिवाइड, 1.36 इंटू 10⁻³ ये आपका कैलकुलेट करके आएगा 2.26 इंटू 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, एंड इन टर्म्स ऑफ इन आवर्स आप ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई इसको, यानी कि जो वैल्यू आई है 1.36 इंटू 10⁻⁻, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 8.16 इंटू 10⁻⁻² मोल्स पर लीटर पर आवर। अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने आवर के लिए 60 से मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज टाइम नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो इसीलिए इसको मैंने ऊपर ले लिया। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, और इसको हम मिनट में ही निकालेंगे बिकॉज हमें टाइम मिनट्स में ही दिया है। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 and this I am going to calculate in minutes. ठीक है, so this is equal to delta NO2 by delta T। ठीक है, ये हमारे इस इक्वेशन से आ जाएगा। डेल्टा NO2 जो हमें इक्वेशन दिया उसके बेसिस पे हमने ये निकाल लिया। ठीक है, डेल्टा NO2 by डेल्टा T। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट। सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा N2O5 by delta T is equal to 1/4 delta NO2 by delta T। इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन भी आप लिख सकते हैं, बट हमें उसकी जरूरत अगेन नहीं है इस केस, हमें उसकी जरूरत नहीं है। सो पर मैं लिख देती हूँ ताकि आपको ये नहीं लगे कि ये क्यों नहीं लिखा। तो हमें इन दोनों की जरूरत है, यहाँ से -1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T। ये कैंसिल आउट होगा 2 माइनस डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इन मिनट्स में क्या थी, ये थी, और स्ट्रेट अवे रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू लिख लीजिए, इसको काटने की भी जरूरत नहीं है। ये देखिए इस चीज की वैल्यू -1/2 डेल्टा N2O5, ये क्या आई थी 1.36 इंटू 10⁻⁻3। तो बस ये लिख लीजिए यहाँ पे, दिस इज 1.36 इंटू 10⁻⁻3, दिस इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T। यहाँ से ये जो है ये आ जाएगा डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T, यानी कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 4 इंटू 1.36 इंटू 10⁻⁻3 आ जाएगा 5.44 इंटू 10⁻⁻3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, नॉट पर सेकेंड, इट इज पर मिनट, पर मिनट। तो ये हमने निकाल लिया रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, for a chemical reaction 2A plus
B gives you 2C plus 3D. The rate of disappearance of A is 0.10 mole per liter per second. ये per liter per second है. This is per liter per second. Calculate the rate of reaction and the rate of disappearance of D. अब पहले देख लेते हैं हमें गिवन क्या है. हमें गिवन है rate of disappearance of A. So rate of disappearance of A that is minus dA by dt is equal to 0.10 moles per liter per second. Calculate the rate of reaction and the rate of disappearance of D. First of all, rate of reaction हम इसी वैल्यू से एक ही निकाल लेंगे. Rate of reaction in terms of A क्या होगा? In terms of A, क्योंकि हमें rate of disappearance of A given है तो उसी को यूज करेंगे. This is minus 1/2 dA by dt and dA by dt की वैल्यू क्या है? minus dA by dt की 0.10. So this is equal to 0.05 moles per liter per second. Second, they have asked us rate of appearance of D. Rate of appearance of D, which will be equal to plus dd by dt. राइट, यही होगा. ठीक है. अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. अब इसकी निकालेंगे रेट एक्सप्रेशन से. नाउ रेट ऑफ रिएक्शन in terms of A and D will be equal to, in terms of A तो हमें पता है minus 1/2 dA by dt and in terms of D 1/3 dd by dt. इसकी वैल्यू हमने 0.05 निकाली थी, हमें इसकी निकालनी है. सो वी नो दैट minus 1/2 dA by dt की वैल्यू क्या आई थी? 0.05 into 10 raised to not something 0.05 आई थी ये. एंड just a second, this is equal to 1/3 dd by dt. So यहाँ से this implies small change in concentration of D with time is equal to 0.15 moles per liter per second. यही हमने इन्होंने पूछा है कि D rate of disappearance of rate of appearance of D निकालो, which is dd by dt. The reaction N2O5 2N2O5 gives you 4NO2 plus oxygen, is carried out in a closed vessel. The concentration of N2O5 is found to decrease by 2 into 10 raised by minus 2 moles per liter in 10 seconds. Calculate the rate of reaction and rate of appearance of NO2. सेम क्वेश्चन मैंने पीछे भी कराया है, उसमें एवरेज रेट था की बात थी, अगर आपको याद हो. तो हमें यहाँ पे उसी को यूज करके निकालना है कि मतलब वही हमने निकालना है इसके अंदर. सेम वैसे ही करना है हमें कि रेट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन गिवन है हमें और इसमें हमें द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इज फाउंड टू डिक्रीज बाय 2 into 10 raised to minus 2 moles पर लीटर इन 10 सेकेंड्स. नहीं, उसमें एवरेज की बात की थी, सेम ही न्यूमेरिकल था कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, उसमें इंक्रीज हो रही थी कॉन्सेंट्रेशन. उसमें प्रोडक्ट की बात थी, कोई प्रोडक्ट आई थिंक बी था, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी विद टाइम एंड इसमें डिक्रीज हो रही है N2O5 की. सो ये वैसा ही एक न्यूमेरिकल है जो मैंने पहले किया है. सो व्हाट वी हैव बीन गिवन कि दिस इसकी कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम. तो हमें गिवन है कि ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 2 into 10 raised to minus 2 एट पर्टिकुलर इंस्टेंट. इस वैल्यू से वो डिक्रीज हुई है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट in 10 seconds. So यानी कि dN2O5 by dt निकाल लिया हमने, which is equal to 2 into 10 raised to power minus 3 moles
पर लीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ N2O5, बिकॉज हमें dN2O5/dt पता है। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ N2O5 will be equal to -1/2 dN2O5/dt। नाउ हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन है, क्या बोलते हैं उसे, अच्छा अब ये क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो मैं माइनस साइन यहाँ लगा सकती हूँ। सो नाउ हमारे पास -1/2 dN2O5/dt रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। हमारे पास -dN2O5/dt यानी कि डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 विद टाइम है, विच इज इक्वल टू 2 into 10⁻⁻3। तो ये आ गया 10⁻⁻3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ये माइनस साइन इसलिए लगाया कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है N2O5 की विद टाइम। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें क्या बोला है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। नाउ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 इज इक्वल टू व्हाट, dNO2/dt। इसकी वैल्यू निकालने के लिए अगेन हमें रेट एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन यूज करना पड़ेगा। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ N2O5 हमें पता है, इन टर्म्स ऑफ NO2 लिख लेते हैं। सो रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के टर्म्स में क्या आएगा, -1/2 dN2O5, what's wrong with it, N2O5/dt, एंड इन टर्म्स ऑफ NO2 ये हो जाएगा 1/4 dNO2/dt। हमें dNO2/dt निकालना है। इसकी वैल्यू हमें पता है, ये पूरे की वैल्यू 10⁻³ आई थी। तो दिस इज इक्वल टू 1/4 dNO2/dt। दिस implies rate of appearance of nitrogen dioxide is equal to 4 into 10⁻³ moles per liter per second। सो ये न्यूमेरिकल काफी सभी न्यूमेरिकल मोस्ट ऑफ देम आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर द रिएक्शन N2 plus 3H2 gives you ammonia, the rate of reaction is found to be 2 into 10⁻⁻4 moles per liter per second. Calculate the rate of disappearance of nitrogen and hydrogen। now rate of reaction given है हमें, rate of reaction that is equal to 2 into 10⁻⁻4 moles per liter per second। अब इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, इट विल बी इक्वल टू -dN2/dt। इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन इट विल बी +1/3 dH2/dt, not plus, again it's a reactant, तो ये माइनस। in terms of ammonia it will be +1/2 d ammonia NH3/dt। हमें बोला है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन निकालो। now what is rate of disappearance of nitrogen, rate of disappearance of nitrogen gas will be equal to -dN2/dt, और यही तो रेट ऑफ रिएक्शन भी है। तो यानी कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 into 10⁻⁻4 moles per liter per second। नेक्स्ट हमें बोला है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन निकालो। रेट ऑफ disappearance of hydrogen, this is equal to -dH2/dt। अब हमारे पास -1/3 dH2/dt की वैल्यू है, यानी कि इसकी वैल्यू दिस इज इक्वल टू, सारी की वैल्यू 2 into 10⁻⁻4 के बराबर है ना। सो बट वी हैव
-1/3 dH2 by dt is equal to 2 into 10 raised to power -4. यहाँ से rate of disappearance of hydrogen comes equal to 6 into 10 raised to power -4 moles per liter per second. ठीक है, सो ये आ गया हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन. फॉर द रिएक्शन N2O5, for the reaction N2O5 gives you 2NO2, I mean equilibrium में है. It has been found that the pressure of N2O5 falls from 0.64 atm to 0.38 atm in 28 minutes. Calculate the rate of reaction and the rate of appearance of NO2. अब यहाँ पे हमें प्रेशर दिया है, तो हम तो चेंज इन जो हम निकालेंगे वो चेंज ऑफ प्रेशर निकालेंगे. सो एवरेज रेट ऑफ, जो एवरेज आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 0.64 atm टू 0.38 atm प्रेशर डिक्रीज है इन 28 मिनट्स. तो अगर मैं बोलूं इनिशियल प्रेशर इज 0.64 atm, फाइनल प्रेशर इज 0.38 atm, टाइम इनिशियल मान लेते हैं हमें 0, and this is 28 minutes. तो rate of change of pressure of N2O4 will be equal to 0.38 minus 0.64 upon 28 minus 0. This is equal to 0.26 by 28. सो ये हो जाएगा माइनस, लेकिन दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी. सो बेसिकली ये वैल्यू आ गई आपकी 0.26 अपॉन 28 एंड ये आ जाएगी 9.28 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3. ये आ गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑफ N2O5. अब लेकिन हमें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन. और रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ N2O5, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ N2O5 is equal to, will be what? It will be rate of change of pressure of ये obviously minus डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, एंड इसकी वैल्यू आई है 9.28 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 atm पर मिनट. ठीक है, अब आप बात करते हैं नेक्स्ट है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2. नाउ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 will be what? Change in concentration of NO2 with time. Just a second. हाँ, ठीक है. और ये प्रेशर ऑफ, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं, ये दिस इज ऑफ N2O4. मैं यहाँ पे N2O5 लिख गई हूँ, दिस इज N2O4. और जो ये बात हो रही है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ये N2O4 की बात हो रही है, और यहाँ पे ये होगी ऑफ NO2. नाउ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ NO2 क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन in terms of NO2, in terms of NO2, it will be equal to minus, not minus, plus 1/2 delta change in pressure of NO2 with time. अब रेट ऑफ रिएक्शन हमने निकाल लिया, 9.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3. ये तो सॉरी, ये हमने निकाल लिया. रेट ऑफ रिएक्शन हमने निकाल लिया इन जनरल, बट रेट ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू है वो आई है 9.28 इंटू 10 रेज़ टू -3. देयरफॉर 1/2 NO2 by delta T is equal to 9.2 into
10 raised to power minus 3. Therefore, delta P NO2 by delta T is equal to 2 into 9.2 into 10 raised to power minus this. This is equal to 1.856 into 10 raised to power minus 2 ATM per minute. यह आएगा आपका रेट ऑफ appearance of NO2 is equal to 1.856 into 10 raised to power minus 2 ATM per minute. So ये था आपका numerical या questions based on the rate of reactions. So this was all about it. And in the next video, I will be taking up order of reaction.